students. Now our next relation between sides and angles of a triangle is cosine rule, whose statement is in a triangle ABC, number 1, a square is equal to b square plus c square minus 2bc cos of a. Number 2, b square is equal to c square plus a square minus 2ac cos of b. Number 3, c square is equal to a square plus b square minus 2ab cos of c. Proof. For proof, draw triangle ABC. As per usual notations, in triangle ABC, we have to take measure of side which is opposite to angle A is small a, and measure of side AC which is opposite to angle B is small b, and measure of side AB which is opposite to angle C is small c. Now take point A as origin and side AB lies along x-axis. Consider a line which passes through point A and perpendicular to line AB is y-axis. Now we can find coordinate of point A, B, C, which are vertices of triangle ABC, as point A lies along origin of the coordinate system, therefore their coordinates are 0, 0. And point B lies along x-axis, that means point B is at x-axis, therefore its y coordinate is 0 and its x coordinate is small c, since point B is away from point A and situated at a distance of small c, therefore coordinate of x coordinate of point B is small c. Now for finding x and y coordinate of point C, let us draw a perpendicular from point C to line AB and its support point is M. Now CM, length of line segment CM is y, and length of AM is, let us consider, x. Therefore point C is having x, y coordinate. Now in triangle AMC, it is right angle triangle. In triangle AMC, consider sine of A. Sine A is opposite, sine of angle A is opposite upon hypotenuse. That means length of CM divided by length of AC, that means y divided by B. Therefore it can be written as B into sine of A is equal to y. And let us consider cos of angle A. Cos of angle A is adjacent upon hypotenuse, that means AM divided by AC. AM, length of AM is x divided by length of AC is small b. It can be written as B into cos of A is equal to x. Therefore x and y coordinate of point C becomes x means B cos of A and y means B sine of A. Now in triangle ABC, we have all the coordinates of point ABC. That means all the three
vertices are known. Now let us consider length of side BC is as per usual notation, it is small a means length of side BC. Now length of side BC can be determined by distance formula. डिस्टेंस फॉर्मूला याद करें, हम 9th में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा है. अगर इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कंसीडर कर लो और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसीडर कर लो, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम इस बीसी लाइन सेगमेंट की लेंथ यानी बीसी डिस्टेंस को हम बता सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. क्या रहेगा डिस्टेंस फॉर्मूला? x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर, y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर. दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ए स्क्वायर इज इक्वल टू इस स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट चला जाएगा, x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर. x1 y1 की वैल्यूज को यहां पुट कर दे, देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू x1 दैट मीन्स c माइनस x2 दैट मीन्स b cos ऑफ a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 इज 0 माइनस y2 b साइन ऑफ a ब्रैकेट स्क्वायर. नाउ इसका एक्सपांशन बाय a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला, c स्क्वायर a का स्क्वायर दैट मीन्स c स्क्वायर माइनस 2 इंटू b c cos ऑफ a, b c cos ऑफ a. इसका स्क्वायर b स्क्वायर दैट मीन्स इस b का भी b cos का स्क्वायर होगा, दैट मीन्स b का भी स्क्वायर होगा, cos का भी स्क्वायर होगा, b स्क्वायर cos स्क्वायर है, प्लस 0 माइनस b साइन ए दैट मीन्स माइनस b साइन ए, माइनस b साइन ए का स्क्वायर निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, b साइन ए का स्क्वायर b का भी स्क्वायर होगा, साइन का भी स्क्वायर होगा. हम इसको देखें तो ये आपका दोनों में b स्क्वायर कॉमन निकलता है. मैं b स्क्वायर कॉमन निकालूं तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस 2 bc cos ऑफ a प्लस b स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, क्या बचा cos स्क्वायर ऑफ a प्लस साइन स्क्वायर ऑफ a. साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, क्या रहेगी उसकी वैल्यू बाय आइडेंटिटी रिलेशन, its value is 1 into b square that means b square. Therefore this equation becomes a square is equal to c square minus 2bc cos of a plus b square into 1 that means b square. हम इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, a square is equal to b square plus c square, b square plus c square, ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, हम इसको पहले लिख लेते हैं और ये सेकंड टर्म को बाद में लिखते हैं 2bc cos of a. यही हमारा फर्स्ट रिजल्ट था जो कि प्रूफ करना था, हमने प्रूफ किया. तो किसी भी ट्रायंगल में साइड ए का एबीसी ट्रायंगल में साइड ए का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों साइड के स्क्वायर के एडिशन माइनस 2 टाइम्स बी सी कॉस ऑफ एंगल ए. सिमिलरली वी कैन प्रूव सेकंड एंड थर्ड. हम सेकंड और थर्ड को भी इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं. अगर सेकंड प्रूफ करना होगा तो आपको पॉइंट बी पे को ओरिजिन पे लेना होगा और अगर आपको थर्ड प्रूफ करना होगा तो पॉइंट सी को ओरिजिन पे लेना होगा. इस तरीके से आप इसे प्रूफ कर सकते हो. तीनों रिजल्ट को सिमिलरली वी कैन प्रूव. तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट था, पहला रिजल्ट था जिसको हमने प्रूफ किया. सेकंड और थर्ड सिमिलरली वी कैन प्रूव. अब इसी आपके इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं. अगर हम इस को देखें ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ऑफ ए. इस निगेटिव टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊं, पॉजिटिव हो जाएगी. 2bc cos ऑफ ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. इस पॉजिटिव टर्म को उठा के उधर ले जाऊं, निगेटिव हो जाएगी. इस 2bc को ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है cos ऑफ ए से, तो cos ऑफ ए इस 2bc को इधर ले आए, डिवाइड करेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc. इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं cos ए को. सिमिलरली cos ऑफ बी को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं. cos ऑफ बी को लिख सकते हैं आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ca. ऐसे ही हम cos ऑफ सी की वैल्यू भी लिख सकते हैं. cos ऑफ सी
दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। तो इन तीनों रिजल्ट को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसे भी हमें याद रखना है कि आपको कोसाइन रूल को इस तरीके से लिखने के साथ साथ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। उसी से आया हुआ ये फॉर्म है, उसी का बदला हुआ फॉर्म है।